تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب بھی حکومت سنبھالی ملک کو بدحالی کے اندھیروں سے نکال کر روشن مستقبل کی جانب گامزن کیا۔ محمد شہباز شریف سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ 4 مارچ 2024 کو جب محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو ان کے سامنے معاشی بحالی، سیاسی استحکام، امن اور سلامتی کو لاحق خطرات اور عالمی سطح پر پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکالنے جیسے چیلنجز درپیش تھے۔ آج ایک برس بعد وطن عزیز کے افق سے ان خطرات اور خدشات کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ولولہ گیز قیادت کے باعث درست سمت میں اقتصادی ترقی، معاشی خوشحالی اور قومی خود انحصاری کے روشن سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان قابل ستائش کامیابیوں کا سفر صرف ایک برس میں طے ہوا ہے۔ کہنے کو تو یہ 12 ماہ ہیں، مگر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی کرشمہ ساز شخصیت اور ان کی ماہر ٹیم کی انتھک لگن نے اس مختصر دورانیہ میں پاکستان کی تیز رفتار معاشی اور سماجی ترقی کے ذریعے روشن مستقبل کی بنیاد رکھ دی۔ چند برس قبل معاشی تغزلی نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سر پر منڈلاتے ان خطرات سے قوم کو نکالنے کے لیے عزم اور استقلال سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 25 ستمبر 2024 کو IMF کے ساتھ $7 ارب کے پروگرام کے معاہدے سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ 37 ماہ پر مشتمل اس پروگرام نے پاکستانی معیشت کو استحکام کے راستے پر ڈال دیا۔ حکومت کی بہتر معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کے ہمگیر پروگرام نے دیگر عالمی مالیاتی اور ترقیاتی اداروں کو پاکستان کی جانب متوجہ کیا۔ جنوری 2025 میں ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کو مرحلہ وار $20 ارب کی فراہمی کے شراکتی پروگرام کے آغاز نے یہ حقیقت عیاں کر دی کہ بڑھتے ہوئے معاشی اور سیاسی استحکام سے پاکستان کی عالمی ساکھ اور اعتبار میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان عام آدمی کی حالت میں بہتری لانا موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی معاشی ٹیم کی شبانہ روز محنت سے اہل وطن کو مہنگائی سے نمایاں ریلیف مل چکا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مئی 2023 میں افراط زر کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی، مگر حکومتی کوششوں سے ریکارڈ کم عرصے میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 2.4% پر آ گئی ہے، جس کا اعتراف ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ میں بھی کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2021 کے بعد 2024 میں پہلی بار مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ مہنگائی کے ستائے ہم وطنوں کے لیے بجلی بلوں میں اضافہ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ حکومت نے دہائیوں قبل IPPs کے ساتھ بجلی کی خریداری کے لیے کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کی۔ ماضی کے برعکس اب IPPs کو ٹیک اینڈ پے پالیسی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اکتوبر 2024 اور جنوری 2025 میں بجلی فراہم کرنے والے 14 اداروں کے ساتھ نئی شرائط اور پہلے سے موجود معاہدوں پر نظر ثانی سے بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی ممکن ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت نے بجلی کی قلت پر قابو پانے کے ساتھ کم آمدنی والے شہریوں کے لیے بجلی کے بلوں پر سبسڈی کی سہولت بھی مہیا کی۔ 0 سے 500 یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ ریلیف ملے گا۔ 14 روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے غیر روایتی شعبوں جیسے سولر اور ونڈ انرجی کی صنعت پر حکومت کی خصوصی توجہ ہے۔ اس انڈسٹری کے لیے درکار خام مال پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی اور مقامی طور پر اس کی پیداوار کے لیے درکار صنعت کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نظام میں موجود مالی اور انتظامی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے
वसील बुनियाद प्रोग्राम के नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बिजली के तरसील के इदारे NTDC को 3 इदारों में तकसीम करके इसकी इफादियत मजीद बेहतर बनाई गई है। चंद बरस कबल डॉलर की बढ़ती कीमत से मुआशी इंतजाम दुश्वार तर हो चुका था। हुकूमत ने ब्लैक मार्केट पर काबू पाकर और डॉलर की स्मगलिंग को कंट्रोल करके इसकी कीमत में मसनूई इजाफे का रास्ता बंद कर दिया है। माजी में शरह सूद में रिकॉर्ड इजाफे से सनती तरक्की का पहिया जाम और रोजगार के मौके मसदूद हो गए थे। मौजूदा हुकूमत के इक़दामात के बायस शरह सूद में रिकॉर्ड कमी से जहां सनती तरक्की की रफ्तार तेज हुई तो वहां रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए हैं। 2023 में शरह सूद 22% थी, जो कि अब 12% पर आ चुकी है। हुकूमत इस साल के आखिर तक शरह सूद सिंगल डिजिट तक लाने का हदफ रखती है। दिसंबर 2024 इस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख का यादगार वक्त था जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख की सतह उबूर कर गया। 2024 के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स के करीब था। इस तारीखी इजाफे की वजह से इंटरनेशनल इदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दिया। किसी भी मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की उसकी बरामदात और तरसील ज़र की मरहून मिन्नत होती है। मौजूदा हुकूमत की मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और सहूलियात की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मसनूआत और सर्विसेज के बैरून मुल्क बरामदात से हासिल होने वाले ज़र मुबादला में 34% तक इजाफा हुआ है। माली साल 2024 में पाकिस्तान ने 6 मिलियन टन चावल बरामद किए। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री और फलों की बरामद में भी खातिर खा इजाफा हुआ। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के हजम में भी इजाफा हो रहा है। इस गरज से कायम होने वाले इदारे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मौसर पॉलिसियों और सरमायाकारी के साजगार माहौल के लिए उठाए गए इक़दामात के बायस ज़राअत, IT, टेलीकॉम और मादनियात की इंडस्ट्री में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी दिन ब दिन बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इसने मकामी ऑयल कंपनियों के 40% हिस्से खरीद रखे हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की मारूफ कंपनी ने भी मकामी ऑयल कंपनियों में भारी सरमायाकारी की है। बलूचिस्तान में रैकोडिक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कशिश और दिलचस्पी का बाइस हैं। SIFC ने इन ज़खायर की तरक्की और मुल्की मईशत के लिए इन्हें कारआमद बनाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की माइनिंग कंपनियों को सरमायाकारी पर आमादा किया है। बैरिक गोल्ड नामी आलमी माइनिंग कंपनी रैकोडिक के 50% हिस्से पर काम कर रही है। पाकिस्तान को हर साल इससे $2 बिलियन हासिल होंगे। इसके अलावा बिरादर मुल्क सऊदी अरब की मीनारा मिनरल नामी कंपनी बलूचिस्तान में माइनिंग की सनत में भारी सरमायाकारी कर रही है, जिसकी बदौलत मुस्तकबिल में ये इंडस्ट्री मुल्क की मुआशी खुशहाली का बाइस साबित होगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ साथ समंदर पार पाकिस्तानी की जानिब से तरसील ज़र में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुआशी तरक्की से खाइफ कुछ अनासिर के मजमून प्रोपेगेंडे के बावजूद मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में इजाफा 5 बरस में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद और मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की बदौलत इस माली साल के अख्तिताम तक तरसीलात ज़र की मिक़दार पहले की निस्बत कहीं बढ़ जाएगी। इन इक़दामात का असर पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में कमी की सूरत में सामने आया। हमारा सरप्लस अकाउंट साल 2024 के आखिर में $729 मिलियन तक पहुंचा, जो कि फरवरी 2015 के बाद सबसे ज्यादा इजाफा है। मौजूदा हुकूमत ने टैक्स इकट्ठा करने के कमजोर निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशेवराना मुतबादल ज़राए के साथ बदल दिया। FPR में हमागीर इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की मदद से
ٹیکس کلیکشن کو شفاف اور زیادہ کارآمد بنایا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے 10 رکنی ٹاسک فورس کی سفارشات پر عمل درآمد کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی بار قانون سازی کی گئی، جس کے نتیجے میں ٹیکس نہ دینے کے کلچر کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے کم سے کم انسانی مداخلت پر مبنی ڈیجیٹلائز نظام متعارف کرایا گیا، جس کی بدولت کسٹم ڈیوٹیز سے محصولات وصولی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حکومتی اداروں کی اصلاحات اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کی استعداد میں اضافے کو اپنا اولین ہدف قرار دیا۔ اس غرض سے ایک مربوط پروگرام تشکیل دیا گیا، جس کی بدولت حکومتی تحویل میں چلنے والے اداروں کی مرحلہ وار نجکاری، خزانے پر بوجھ بننے والے اداروں اور وزارتوں کو انضمام اور غیر ضروری سرکاری اسامیوں کا خاتمہ شامل تھا۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی مرحلہ وار نجکاری بھی کی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافے کے لیے ذمہ دارانہ اور ملکی مفاد سے ہم آہنگ خارجہ پالیسی موجودہ حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دوست ممالک کے ساتھ پہلے سے موجود روابط کو مزید مستحکم اور تجارتی فروغ کے لیے پالیسی اپنائی۔ پاکستان کے سب سے قریبی دوست سعودی عرب کے 5 دوروں کے دوران انہوں نے سعودی بادشاہ، ولی عہد سمیت دیگر اعلیٰ حکومتی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں میں اخوت کے رشتوں کو گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی، اقتصادی روابط اور تعاون کی نئی راہیں دریافت کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے ستمبر 2024 میں اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے دیرینہ مواقف کی ترجمانی کی۔ Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so, no matter what, until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. We call on Israel to put an immediate end to the blatant use of force and flagrant violations of human rights of the Palestinian people. اس کے علاوہ انہوں نے عالمی سطح پر دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی اجتماعی کاوشوں پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے کوپ 29 کانفرنس میں عالمی ماحولیاتی معاہدوں کے بارے میں پاکستان کی ذمہ داریوں اور دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے چین، قطر، مصر، تاجکستان اور قازقستان کے دوروں کے باعث ان ممالک کے ساتھ تجارت اور باہمی تعلقات کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ موجودہ حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ماضی قریب میں چین اور ملیشیا کے وزراء اعظم، روس کے نائب صدر اور ایران کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اکتوبر 2024 کو اسلام آباد میں ہونے والی SCO کانفرنس اسی اعتماد کی مظہر تھی، جب عالمی طاقتوں کے سربراہان اور نمائندوں نے پاکستان کے مخالفین کی پروپیگنڈے کو یکسر نظر انداز کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان سرمایہ کاری، سیاحت اور سیکورٹی کے حوالے سے ایک محفوظ اور ذمہ دار ملک ہے۔ پاکستان نے جنوری 2025 میں کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ کی میزبانی کی، جس میں 13 سے زائد ملکوں کے وزراء اور نوجوان قیادت نے شرکت کی۔ چیلنجز سے نمٹنے میں دولت مشترکہ رکن ممالک کے درمیان بہترین شراکت داری کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ سپورٹس ڈپلومیسی میں بھی پاکستان کی حکمت عملی کامیاب رہی، جس سے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی سے محروم کرنے کا بھارتی خواب پورا نہیں ہو سکا۔ پاکستان پر عالمی اعتماد کا اظہار یورپی یونین کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے جیسے اقدامات سے ہوا۔
हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है कि 4 साल के बाद PIA अब यूरोप के लिए अपनी फ़ज़ाई सर्विस का आगाज कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होते ही मरियम नवाज ने अवामी खिदमत का तेज़ तरीन सफ़र शुरू करके तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में तरजीही बुनियादों पर काम किया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम और तलबा में लैपटॉप की तकसीम से लेकर ई-बाइक की तकसीम तक, जिगर की पैवनकारी के लिए ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के आगाज समेत आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। अपना घर अपनी छत लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए देही खवातीन में मवेशियों की तकसीम और अक़लियतों के लिए पहली बार अक़लियत कार्ड का इजरा भी उनके आला विजन की मिसाल है। साफ और सरसब्ज पंजाब विजन के तहत भी इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज भी किया। सिर्फ 1 साल में 80 से ज़ायद मंसूबों का आगाज किया गया, जिनमें से 50 से ज़ायद मुकम्मल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के मुआशी गेम चेंजर प्रोग्राम CPEC के दूसरे मरहले को भी बिरादर मुल्क चीन की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन के दौरे के दौरान CPEC के दूसरे फेज के बारे में आला चीनी हुक्काम के साथ मौसर और नतीजा खेज मुलाकातें की। CPEC के दूसरे फेज के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पैदावारी शोबे की तरक्की का जरिया बन रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने IT इंडस्ट्री की तरक्की को अपनी तरजीहात का खुसूसी हदफ करार दिया। इस वक्त मुल्क में 14 लाख फ्रीलांसर्स इस इंडस्ट्री के जरिए मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हुकूमत ने इस साल के अख्ताम तक इस तादाद को 20 लाख तक ले जाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने छोटे किसानों को कर्जों की सहूलत, बीज और अद्वियात की सस्ते दामों फराहमी के निज़ाम को बेहतर और किसान दोस्त बनाया है। इस गरज से 400 अरब रुपए का पैकेज मुतारिफ करवाया गया, जिसमें किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल हैं। लाइफ स्टॉक के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए प्लानिंग कमीशन का खुसूसी मंसूबा चारों सूबों में किसानों को खुसूसी सहूलियात मुहैया कर रहा है। इसी के साथ ही पाकिस्तान में कॉरपोरेट फार्मिंग जैसे जदीद तसव्वुरात को राइज करने के लिए 1,99,000 एकड़ अराजी को काबिल काश्त बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में फूड सिक्योरिटी के मसाइल में भी कमी वाक़ई होगी। मेरी कोई ख्वाहिश है तो वो ये है कि मैं छोटी मोटी खिदमत कर दूँ, कोई लेगेसी बन जाए, पाकिस्तान चल पड़े अपने उस तरक्की के सफ़र की तरफ, और लोग कहें कि हाँ भी एक हुकूमत आई थी, एक खादम आया था जिसने मिलकर एक पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर चढ़ा दिया। अब सफ़र जो है तरक्की और खुशहाली का है। अब आपने हमारा बाजू बनना है, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम बनाना है, ताकि हम आगे लेके चलें पाकिस्तान को। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत ने बैक वक्त तवील और कलील मुद्दत मंसूब पर तवज्जो मरकूज की। वज़ीर आज़म ने आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया था। माहौलियात के लिए काम करने वाले मकामी और आलमी इदारों के इश्तराक और ताउन से क्लाइमेट चेंज के असरात का मुकाबला करने के लिए माहौल दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत का इनकलाबी कदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद, अंदरूनी मुल्क तैयारी और इस सनत को दी जाने वाली सहूलियात में इजाफा शामिल है, जिसकी मिसाल जनवरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 70 रुपए से कम करके 39 रुपए फी यूनिट कर दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने गुज़श्ता अदवार में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के जरिए कारोबारी और समाजी तरक्की के जिस अमल का आगाज किया था, वो अब पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहा है। मुल्क में मोटरवेज और हाईवेज के फैलाव और तरक्की के बायस सनत पैदावार और सियाहत की सनत के इम्कानात और इस्तेहकाम में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक नौजवान मुल्क का कीमती तरीन सरमाया है। उनको बासलाहियत और मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए
कई मुफस्सल प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें वजीर आजम कामयाब जवान प्रोग्राम, यूथ लैपटॉप और यूथ लोन स्कीम, वजीर आजम डिजिटल यूथ हब, हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज, सरीना चौक इंटरचेंज, F9 इंटरचेंज, पार्क रोड समेत दीगर तरक्याती मंसूबे जेर तकमील हैं। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की। वफाकी हुकूमत की जानिब से 23 अरब रुपए का खुसूसी मालियती पैकेज आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दिया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने यह रकम आटे और बिजली की सब्सिडी पर खर्च की, जिससे आवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया। आज़ाद जम्मू व कश्मीर में बिजली के घरेलू सारिफीन के लिए रियायती निर्ख मुतारिफ कराए गए। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संग बुनियाद रखा गया। इस मंसूबे में दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंपस होंगे। गिलगित में अता आबाद झील से पन बिजली मंसूबे, स्कर्दू में हरपो पन बिजली और ग्रिड स्टेशन की तामीर के संग बुनियाद के अलावा ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा के मंसूबे का संग बुनियाद भी मौजूदा दौर हुकूमत में रखा गया। नलतर एक्सप्रेस वे गिजर में 10 कनाल अराजी पर मॉडल विलेज का क़याम, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग ब्लॉक, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी की तामीर और गिलगित बल्तिस्तान के तूलो अर्ज में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत औरतों, बच्चों, माजूर अफराद, अक़लियतों और तवज्जो के तालिब दीगर अफराद और शुबाजात में गुज़श्ता एक बरस के दौरान गैर मामूली इक़दामात किए गए। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी और इक़्तिसादी बहाली के साथ मुल्क में सियासी और कानूनी इस्लाहात से गवर्नेंस की बेहतरी की बुनियादें मज़ीद मजबूत की हैं। रियासती इदारों की इस्तेदाद कार में बेहतरी और उनके दरमियान कशमकश के खात्मे के लिए दीगर सियासी जमातों की मदद से 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत की सियासी बसीरत और मुफाहमत पर मबनी पॉलिसियों की अक्कास से हुकूमत ने फेक न्यूज़ का खात्मा करने के लिए बड़े मौसर अंदाज में इक़दाम किए, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अवाम तक दुरुस्त खबर और मालूमात पहुंच सके। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हर मुमकिन इक़दामात उठाए और फितना अल खवारिज समेत मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ आहीनी हाथों से निपटने की पॉलिसी अपनाई। गुज़श्ता एक साल के दौरान हासिल होने वाली इन कामयाबियों की रफ्तार तेज करने और इन्हें तवील मुद्दत और नतीजा खेज कामयाबी में तब्दील करने के लिए हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साला इक़्तिसादी मंसूबा शुरू किया। हमगीर नौयत के इस प्रोग्राम के तहत बरामदात, टेक्नोलॉजी, माहौलियात, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में आइंदा 5 बरसों के लिए अहदाफ का तयन किया गया है। आए आज इस बात का फैसला करें कि हम कायदे आज़म के ख्वाब की तकमील के लिए मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इक़्तिसादी बहाली, समाजी और टेक्नोलॉजी में तरक्की का ये प्रोग्राम हमारे आने वाली नस्लों की खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा इंशाअल्लाह। तमाम चैलेंजेस, सियासी रुकावटों और प्रोपेगंडे के बावजूद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वलवला अंगेज़ क़यादत, जज्बे हुब्बुल वतनी और मुदब्बराना क़यादत की बदौलत एक साला दौर हुकूमत मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिसाली रहा। आज हम मायूसी और बेयकीनी की कैफियत से निकल कर यकीन महकम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की नजरें तरक्की के नए उफुक पर मरकूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
बर वक्त।